Assalamu alaikum students, welcome to Easy English Classes. So students, today we are here with class number 5. In the previous class, as you know, we learned how to make negative and interrogative sentences. I also gave you some homework, so I hope you have completed it. Students, today we are going to do 3 things. Number 1. जो पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दी थी, आज हम उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करेंगे. नंबर 2. हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम उनको अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, और अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कैसे देंगे. नंबर 3. जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, आज हम उसे मजीद डिटेल में समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, इसमें कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस थीं और मैंने आपसे कहा था कि उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें. आई होप यू हैव डन इट बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. For making negative sentences, we just have to use do not, don't, or does not, doesn't after the subject. And for making interrogative sentences, we just have to put do or does at the beginning of the sentence. Now let's check whether you did it correctly or made any mistakes. I get up in the morning. I don't get up in the morning. I perform ablution. I don't perform ablution. I go to the mosque. I don't go to the mosque. I offer the prayer. I don't offer the prayer. I recite the Holy Quran. I don't recite the Holy Quran. I go for a morning walk. I don't go for a morning walk. I come back home. I don't come back home. I take a bath. I don't take a bath. I change my clothes. I don't change my clothes. I get ready for college. I don't get ready for college. I have breakfast. I don't have breakfast. I go to college. I don't go to college. I take my class. I don't take my class. I meet my friends. I don't meet my friends. I have lunch. I don't have lunch. I take rest. I don't take rest. I do my homework. I don't do my homework. I go to the ground. I don't go to the ground. I play cricket. I don't play cricket. I come back home. I don't come back home. I have dinner. I don't have dinner. I sleep with my family. I don't sleep with my family. I watch TV. I don't watch TV. I go to my room. I don't go to my room. I use my mobile phone. I don't use my mobile phone. I go to sleep. I don't go to sleep. So guys, अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस को देखें तो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने सिर्फ डोंट इस्तेमाल किया है. यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें कि हमने डोंट इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि सब्जेक्ट आई है. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो तो फिर हम डोंट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि डजंट इस्तेमाल करेंगे. So students, now let's convert these positive sentences into interrogative sentences. यानी अब हम इन्हीं जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करेंगे. Number 1, मैं सुबह उठता हूँ. I get up in the morning. इसको सवालिया जुमला बनाने के लिए हम सिर्फ जुमले के शुरू में डो लगा देंगे. Do I get up in the morning? क्या मैं सुबह उठता हूँ? I perform ablution. Do I perform ablution? I go to the mosque. Do I go to the mosque? I offer the prayer. Do I offer the prayer? I recite the Holy Quran. Do I recite the Holy Quran? I go for a morning walk. And do I go for a morning walk? I come back home. Do I come back home? I take a bath. Do I take a bath? I change my clothes. Do I change my clothes? I get ready for college. Do I get ready for college? I have breakfast. Do I have breakfast? I go to college. Do I go to college? I take my class. Do I take my class? I meet my friends. Do I meet my friends? I come back home. Do I come back home? I have lunch. Do I have lunch? I take rest. Do I take rest? I do my homework. Do I do my homework? I go to the ground. Do I go to the ground? I play cricket. Do I play cricket? I come back home. Do I come back home? I have dinner. Do I have dinner? I sit with my family. Do I sit with my family? I watch TV. Do I watch TV? I go to my room. Do I go to my room? I use my mobile phone. Do I use my mobile phone? I go to sleep. Do I go to sleep? So guys, आपने देखा कि सवालिया जमला बनाने के लिए हमने सिर्फ दो जमले के शुरू में लगाया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया. Very simple and very easy. जब भी आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगा दें. अब सवाल यह है कि डूज कहाँ इस्तेमाल होगा.
अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ डज इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डो इस्तेमाल किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था वो होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यू लेसन। सो स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और आंसर कैसे देते हैं। सो गाइज, ये 3 स्ट्रक्चर्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस मुसाबित जमला, नेगेटिव सेंटेंस मनफी जमला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जमला। अब हम उन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्ज करें कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, इसलिए हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डो आएगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब स्पीक और आखिर में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? अब फर्ज करें यही सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। अगर जवाब यस में देना हो तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश। और अगर जवाब नो में देना हो तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? उसके भी 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, यस आई गो टू कॉलेज, नो आई डोंट गो टू कॉलेज। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? अगर जवाब यस में हो तो यस दे रेड बुक्स, और अगर जवाब नो में हो तो नो दे डोंट रीड बुक्स। सो गाइस, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बनाए हैं, लेकिन इसी तरीके से आप हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं और उनके आंसर्स भी दे सकते हैं। बस तरीका हमेशा यही रहेगा। This is the way how you can ask questions and how you can give answers if somebody asks you a question. So students, now practice these sentences again and again. Make your own questions and answer them. Imagine that someone is asking you these questions. Think about how you will answer them. Students, क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज हम 3 चीजें पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है, इसलिए हम बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। So guys, keep practicing. Practice is the key to learning English. Take care of yourselves. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.